So good afternoon, everyone. I am Dr. Atul Jindal, working as additional professor in Department of Pediatrics at All India Institute of Medical Sciences, Raipur. And today I am going to talk about management of dengue fever. We all know that dengue season is on, and we have started seeing dengue patients in our OPDs and hospitals. So let's learn about dengue so that we can effectively manage our dengue patients. Now, in next 40 to 45 minutes, I would be talking on about the overview of dengue fever, how do we manage dengue fever, the practical aspects, and what are the current guidelines and evidence, and what are the various preventive aspects. So we all know that dengue is an acute viral disease which involves many systems. It is a multiple system involvement that happens in dengue. And this disease is there all across the globe in both endemic as well as epidemic transmission cycles. Now, if we look at the burden of dengue, almost 40% of the world's population is at risk. If you see that almost 390 million dengue infections happen every year. And of these, almost 5 lakh people are having severe dengue who require hospitalization every year. And of these, almost 2.5% patients die. So it's a huge number that we are seeing that almost 5 lakh people need admissions in the hospital across the globe. And of these, 2.5% of them die. If we see the Indian scenario in our country also, except Lakshadweep, almost all states and union territories have reported dengue cases during the last 2 decades. And if we see at the case fatality ratio, which means number of deaths per 100 confirmed cases of dengue, although it has declined from 3.3% in 1996 to 0.3% in 2013, but if you look at this graph, on this axis, this is showing the number of cases, confirmed cases of dengue. This is showing the timeline, that is the year, and this is showing the case fatality rate or ratio. You can see that the numbers have gradually increased over the years. So when the numbers in 2007, it was only 10,000, it has increased to almost 70,000 admissions, which have required admissions in our country. And the case fatality ratio, which was quite high from almost like 1.3%, it has come down to 0.3% or 0.2% in 2013. So although the case fatality ratio has come down, but if you see the overall this number, the number of deaths are quite high because the absolute number of cases are more. If you look at the seasonal trend, July, August, September, so the monsoons and 1 or 2 months later monsoons, post monsoons are the seasons when you see the maximum number of dengue cases. So we generally tend to say in August and September, some places say in September, October, and some places say in October, November. So it varies depending on the onset of monsoon. So we start seeing cases from July, and we can see the cases till November or maybe in early December also. Now, coming to the virus, we all know that this is a single-stranded RNA virus belonging to the Flaviviridae family, and it has 4 serotypes, then 1, 2, 3, and 4. All these serotypes are genetically as well as antigenically different. So it means that if somebody has acquired infection with dengue virus 1 and has acquired antibodies and immunity against this, it means that he is immune only to this serotype. He is not immune to other serotypes. In fact, if he develops infection with the dengue virus 2 subsequently, then he would be more worstly affected. The signs and symptoms would be more, possibly if the previous infection was asymptomatic or mild symptomatic, this time the chances are more that this time the infection would be more severe and may even require hospitalization. So infection with one serotype confers lifelong immunity to that serotype only and not with other serotypes. So virus gives very little cross protection. So multiple serotypes infection have also been reported across the globe, which means patient has got infection with not just one serotype, but has got infection with more than one serotype also. So what is the pathogenesis of dengue if we see?
So virus comes, and as soon as it enters after a mosquito bite, and the mosquito is the Aedes aegypti, and once the female Aedes aegypti bites the human being, the virus gets inoculated and it gets transferred into the skin or into the blood, where the macrophages ingest it, and then they activates the immune response. They release certain cytokines and then stimulates the activated natural killer cells and the memory T cells, which releases cytokines. Now, these inflammatory mediators and then the cytokines and the NS1 antigen of the virus. Now, this binds this NS1 antigen binds with the glycocalyx, which is present on the vascular capillaries, and the endothelium cells of these capillaries. On this glycocalyx is there, and this NS1 antigen binds to this glycocalyx, and it causes what? So this glycocalyx preserves the capillary permeability, which means that it does not allow the passage of plasma or leakage of plasma across the capillary. It forms tight junction in the endothelium cell walls. Now, as soon as this NS1 antigen binds to the glycocalyx, there is some changes in the glycocalyx, and then there are pores which develops in the vascular endothelium in the capillaries, and the plasma tends to leak. Along with the leakage of plasma, the coagulation proteins, which are essential proteins for the bleeding to get stopped, also gets leaked out from the capillaries. So hence, because of this plasma leakage and leakage of coagulation proteins, there is an state where intravascular volume is low, as well as there are chances for development of hemorrhage. At the same time, the inflammatory mediators and the cytokines, now they sometimes stimulate these macrophages, and then it is called as antibody dependent enhancement, and this immune system gets super activated and release lot of these cytokines, and this is responsible for presentation in a state sometimes patient suddenly collapses in front of you and you can't do anything. So it's a cytokine storm like state which happens in this because of antibody dependent enhancement. The complement system gets activated, and it causes also causes destruction of the platelets. So these are the various pathogenic mechanisms which happens in dengue. So just to summarize, so dengue virus infection causes two things. It causes production of antibodies, and there may be some presence of enhancing antibodies. So these enhancing antibodies are there when there has been a previous infection, and now the patient has developed another infection from dengue virus with another serotype. Now this antigen antibody reaction causes complement activation. These complements get deposited on the vessels, various tissues and platelets, leading to destruction of platelets and leaky capillaries, leading to coagulopathy. The other pathway is there is activation of T cells, which leads to production of various chemical mediators called cytokines. These binds to the glycocalyx and increases the vascular permeability, and then there are clinical manifestation of capillary leakage. So both these leads to hypotension and shock, pleural effusion, ascites, pericardial effusion, bleeding, and various other organ involvement. So almost every organ can get involved in dengue. Let's see. So the pathophysiology of bleeding is, one is thrombocytopenia and the other is the coagulation pathway defect, which we have already discussed. So what are the symptoms of dengue fever? So we all know that dengue is a biphasic illness where there is a fever which is initially very high grade, it may cross even 40 degrees. It may be even mild to moderate grade, and it is very difficult to differentiate this fever from any other viral fever in the initial days. This fever has a characteristic that it is associated with headache, severe headache, which is predominantly retroorbital. आंखों के पीछे दर्द होता है, सर में फटता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर, ब्रेक बैक फीवर, है ना. तो ये कई सारे नाम है. डिफ्यूज माइल्जिया, सारे हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी रैशेज आते हैं, पूरा चमड़ी या तो लाल पड़ जाती है या पेटिकल स्पॉट्स दिखते हैं या मैक्युलोपेपुलर रैशेज देखने को मिलते हैं. एंड देन यू कैन सी हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ नाक से ब्लीडिंग होना, एपिस्टेक्सिस, गम ब्लीडिंग होना है, म्यूकोजल ब्लीड्स होना है, जीआई ब्लीड हो सकता है, लेट्रिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, सिवियर पेन एब्डोमेन होता है. अगर हम आगे की बात करें तो पेट दर्द, उल्टी, तो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि डेंगू के अंदर हो सकते हैं.
तो ये आप देखें, ये एक पेशेंट है जिसमें पूरा रेडनेस जो होता है ना, पूरी बॉडी रेड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब डेंगू सीजन में आपके पास मरीज आता है तो आप मरीज को ढंग से एग्जामिन करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मरीज ने पूरी बाजू के कपड़े पहन रखे हैं, आपने देखा नहीं, तो ये जो रेडनेस है ये हम मिस कर सकते हैं। कभी कभी ये रेडनेस सिर्फ सेंट्रिपिटल होती है, यानी कि ट्रंक पे, बैक पे और शोल्डर्स के आसपास होती है, हाथ पैरों पे नहीं नजर आती। तो अगर आप पेशेंट को ढंग से एक्सपोज करके नहीं देखेंगे तो यू मे मिस दीज रैशेज एंड दिस रेडनेस। जब सीवियर डेंगू होता है तो मैनिफेस्टेशंस अब ज्यादा आते हैं हिमरेजिक मैनिफेस्टेशन और प्लाज्मा लीकेज की वजह से। प्लाज्मा लीकेज होता है तो जो भी बॉडी में कैविटीज होती है वो पानी भरने लगता है, जैसे कि एसाइटिस होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में सूजन आने लगती है, थर्ड बॉडी स्पेसेस में सूजन आने लगती है, प्लूरल एफ्यूजन होता है उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है। और बहुत ज्यादा जब लीकेज हो जाता है तो जब इंटरवेस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लड ही नहीं बचेगा तो पेशेंट को शॉक के मैनिफेस्टेशन आने लगते हैं। कभी कभी वायरस डायरेक्ट हार्ट को अफेक्ट करता है और मायोकार्डाइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो उसकी वजह से भी शॉक डेवलप हो सकता है। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, देन वेरियस ऑर्गन मैनिफेस्टेशन जैसे कि लीवर पे अफेक्ट करता है तो लीवर फेलियर के जैसे हो सकता है, हेपेटाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, ब्रेन में एंसेफेलाइटिस के जैसे प्रेजेंट कर सकता है, हार्ट में मायोकार्डाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गन सिस्टम डेंगू में अफेक्ट हो सकता है। देयर में भी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, इतना ब्लीडिंग हो रहा है जीआई ट्रैक्ट से कि आदमी ब्लीडिंग की वजह से मर जाता है। और वो जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी ब्लीडिंग होती है कि आपको कैपिलरी लीकेज या हीमो कॉन्सेंट्रेशन वाले फीचर्स भी हो सकता है देखने को नहीं मिले, सीधे बस जस्ट ब्लीडिंग स्टार्टेड। और कभी कभी पेशेंट डायरेक्टली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में प्रेजेंट कर सकता है बिना ब्लीडिंग और शॉक के। तो इसलिए ये सारी वेरियस वेरिएबल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, हर मरीज में अलग तरह से होता है, तो आपको केयरफुल रहना होता है और आपको एक्टिवली इन सब चीज़ों के लिए देखना होता है। तो कुछ एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे डेंगू वायरस में सिर्फ और सिर्फ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, पेशेंट कैन प्रेजेंट यू विद एनसेफेलोपैथी यानी ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ में एनकेफेलाइटिस यानी मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस जैसे फीचर्स होंगे, रेज आईसीपी के मेनिंजाइटिस के फीचर्स होंगे, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, बुखार होगा, कभी कभी इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है, बच्चों में फेब्राइल सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। जीआई इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस, लिवर के अंदर सूजन, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस, सीवियर पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, कोलेंजाइटिस एंड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस भी डिस्क्राइब्ड है डेंगू के अंदर। किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है तो पेशेंट कैन कम विद एक्यूट रिनल फेलियर, सडन यूरिन आउटपुट कम होगा, रिनल शटडाउन हो सकता है, एटीएन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये सब एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस हैं डेंगू वायरस की। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट जैसे मैंने बताया, अरिथमियाज हो सकते हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट में प्लूरल एफ्यूजन मिल सकता है, कभी कभी पल्मोनरी हेमरेज, लंग्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई, हिमोप्सिस हो रही है, और कभी कभी पल्मोनरी एडिमा भी हमें देखने को मिलता है। नाउ हमें एक हाई रिस्क ग्रुप जिसमें डेंगू बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है पेशेंट्स को कंपेयर टू एक नॉर्मल इंडिविजुअल, तो ये हाई रिस्क ग्रुप कौन सा होता है? क्योंकि अगर ये हाई रिस्क ग्रुप आपके साथ पास में डेंगू बुखार लेकर आ रहा है या फीवर लेकर आ रहा है और आपने उसको डायग्नोस किया कि इस मरीज को डेंगू है, तो इट बिकम्स एन इंडिकेशन टू एडमिट। सो हाई रिस्क ग्रुप में अगर डेंगू है विदाउट वार्निंग साइन, सिर्फ बुखार भी है तो भी ये इंडिकेशन होता है कि इनको हम भर्ती करें, क्योंकि इनके सीवियर डिजीज में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये हाई रिस्क ग्रुप क्या होता है? So these group can have severe manifestations of dengue fever and this group includes all pregnant ladies. So जो भी pregnant ladies होते हैं, बच्चे 1 साल से जो छोटे होते हैं, infants, obese, जिनका अभी BMI 25 से ज्यादा है, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज है, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत होते हैं, अल्सर ब्लीड कर सकता है, तो इसलिए इन पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होता है। G6PD डेफिशिएंसी जिनको होता है उनमें भी हमको भर्ती करना होता है, क्योंकि हिमोलिसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट्स को, पेशेंट्स जो कि स्टेरॉइड्स पे हैं, एंटी प्लेटलेट्स पे, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स पे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव होता है, तो वहाँ पे सीवियर डेंगू में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या HIV इन्फेक्टेड, सो ये जो भी स्टेट्स हैं, इन सब मरीजों को अगर डेंगू फीवर है तो प्लीज़ एडमिट दें। नाउ इन्फेंट्स जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट बिहेव करते हैं अडल्ट्स के मुकाबले। इनमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, कभी कभी मोर देन 40 डिग्री तक जाता है, और फीवर भी थोड़ा लंबा चलता है, ऑलमोस्ट लाइक 2 to 7 days।
ज्यादातर इनमें जो सिम्टम्स आते हैं वो जीआई सिम्टम्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले सिम्टम्स आते हैं। सिंपल बुखार के साथ में खांसी, गले में दर्द, जुकाम और दस्त के साथ में आते हैं। और फेब्राइल कन्वल्जन, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें हाई फीवर के साथ में कुछ बच्चों में फेब्राइल कन्वल्जन आ सकते हैं, यानी बुखार की वजह से दौरे आ सकते हैं। और इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार हम लोगों को कि ये डेंगू है कि कोई और कॉमन दूसरा अदर वायरल फीवर है या और कोई दूसरा बुखार है फेब्राइल इलनेस है, तो डिफिकल्ट होता है डिफरेंशिएट करने। दूसरा, बच्चों में हिमेटोक्रिट राइज नहीं होता है, जैसे अपने में प्लाज्मा लीकेज होता है अडल्ट्स में या बड़े बच्चों में, तो उसमें क्या होता है हिमेटोक्रिट बढ़ने लग जाता है। लेकिन जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनमें हिमेटोक्रिट कई बार नहीं बढ़ता, और उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण कि उनमें बेसलाइन हीमोग्लोबिन ही लो होता है, और इसकी वजह से जब बेसलाइन हीमोग्लोबिन लो होता है, एनीमिक होते हैं, तो उनमें अंदर हिमोक्रिट राइज भी हो। सपोज कोई बच्चा है जिसका हीमोग्लोबिन 8 है, आपने उसको एग्जामिन किया, उसका हीमोग्लोबिन आया 10, तो अब 8 से 10 राइज तो हुआ है, लेकिन आपको लगेगा 10 तो नॉर्मल है। तो इट इज वेरी कॉमन दैट वी मिस द राइज इन हिमेटोक्रिट, क्योंकि बेसल हीमोग्लोबिन लेवल्स इनमें या बेसल हिमेटोक्रिट लेवल्स इनमें लो होता है। दूसरा, साथ में एसोसिएटेड आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, तो ये भी एक रीजन होता है जहाँ पे हम मिस कर जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें लिवर इन्वॉल्वमेंट क्वाइट कॉमन होता है। अगर आप देखेंगे तो इनमें लिवर एंजाइम्स क्वाइट ड्रामेटिकली एलिवेटेड होते हैं, लिवर इन्वॉल्वमेंट काफी कॉमन होता है। कभी कभी ऐसे बच्चे सिर्फ एक्यूट लिवर फेलियर के साथ में प्रेजेंट करते हैं, यानी लिवर बड़ा है, उल्टियां कर रहा है, सीवियर जॉन्डिस है, बुखार है या माइल्ड फीवर है या हाई फीवर है, और आप उसको एक्यूट लिवर फेलियर की तरह, हेपेटाइटिस की तरह ट्रीट करते रहते हैं। अगर हमने डेंगू नहीं सोचा तो वी में मिस डेंगू ऑल टुगेदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो कि 1 साल से छोटे बच्चों में ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं डेंगू की। तो डेंगू के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि डेंगू को विद वार्निंग साइंस, विदाउट वार्निंग साइंस और सीवियर डेंगू, ये डब्ल्यूएचओ ने रिसेंट क्लासिफिकेशन दिया था 2018 में। उससे पहले 2015 में नेशनल गाइडलाइंस आई थी, उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट था। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये लेटेस्ट है जो डब्ल्यूएचओ बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस एक कैटेगरी होती है, और दूसरी कैटेगरी होती है सिवियर डेंगू। तो डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस का मतलब क्या होता है, यानी सबसे पहले वो मरीज जो एक एंडेमिक एरिया में रह रहा है जहाँ पे डेंगू ट्रांसमिशन नोन है, वहां पर है, और वहां पे उस मरीज को बुखार है, बुखार के साथ में इन दो में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबल डेंगू। कौन कौन सी 2 चीजें हो सकती हैं? मरीज को नोजिया है, वॉमिटिंग है, रैश है, एक्स एंड पेन्स यानी हाथ पैरों में दर्द है, टॉर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव है, लीकोपीनिया है, या कोई भी वार्निंग साइन है। वार्निंग साइंस ये हम अब बात करेंगे। और अगर लेबोरेटरी में हमने NS1 एंटीजन किया या एलाइजा बेस्ड IgM टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, तो फिर उसको हम लेबोरेटरी कंफर्म डेंगू बोलते हैं। तो इनमें से कुछ भी साइंस और आपने लेबोरेटरी टेस्ट पॉजिटिव है, देन इट इज कॉल्ड लेबोरेटरी कंफर्म डेंगू। अगर लैब टेस्ट नहीं हुआ तो प्रोबेबल डेंगू। इसमें वार्निंग साइंस नहीं है तो ये डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस आ गया। डेंगू विद वार्निंग साइंस में वार्निंग साइंस क्या होते हैं? पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन या टेंडरनेस, पेट में दर्द है, आप हाथ लगाएंगे एब्डोमेन को तो मरीज विंस करेगा, आपको हाथ टाइट कर लेगा पेट को, तो एब्डोमिनल टेंडरनेस है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार उल्टियां हो रही, देखिए डिफरेंस है, एक वॉमिटिंग है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आई, एक आधा वॉमिटिंग आई, परसिस्टेंट वॉमिटिंग लगातार 1 से 2 घंटे में 3-4 बार वॉमिटिंग किए जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट वॉमिटिंग। क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, यानी आपने देखा एसाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है या इडिमा वगैरह है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन। म्यूकोजल ब्लीड, यानी नाक से, गम से या कहीं से ब्लीड हो रहा है, वेट ब्लीड्स जिसको हम बोलते हैं। बट पेशेंट लेथार्जिक है, सुस्त पड़ा हुआ है, रेस्टलेस है, एजिटेटेड है, बिल्कुल परेशान है, लिवर उसका 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आपने लेबोरेटरी टेस्ट किया और आपने देखा कि हिमेटोक्रिट बढ़ रहा है और प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो ये सारे वार्निंग साइंस हैं। और अगर मरीज को वार्निंग साइंस हैं या फिर मरीज को वार्निंग साइंस नहीं है लेकिन वो हाई रिस्क कैटेगरी में है, तो ये दोनों ग्रुप वाले मरीजों को एडमिट करना पड़ता है। जिन मरीजों को सीवियर डेंगू है, सीवियर डेंगू का मतलब 3 चीजें हो सकती हैं, तीनों में से कोई भी। या तो प्लाज्मा लीकेज के एविडेंस हो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मरीज को शॉक डेवलप हो रहा है। शॉक का मतलब मरीज की पल्स वीक हो गई है, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया है, और बीपी नॉर्मल भी हो सकता है। जब नॉर्मल होता है तो हम उसको कॉम्पनसेटेड शॉक बोलते हैं, या बीपी फॉल हो सकता है जहाँ पे हम उसको डीकॉम्पनसेटेड शॉक या हाइपोटेंसिव शॉक बोलते हैं। तो मरीज को शॉक के फीचर्स है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। या फिर
इतना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो। फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट हो सकता है? प्लूरल कैविटी में, यानी सीवियर प्लूरल एफ्यूजन हो गया हो, मैसिव प्लूरल एफ्यूजन, या मैसिव असाइटिस हो जिसकी वजह से भी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इन दोनों में से कुछ भी, मतलब वो फ्लूइड लीकेज और फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द थर्ड स्पेस कैविटीज लाइक प्लूरा और पेरिटोनियम which is leading to respiratory distress comes under severe plasma leakage। तो मरीज को तो शॉक डेवलप हो जाए या इतना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए, तो ये सीवियर प्लाज्मा लीकेज होता है। दूसरा होता है सीवियर हेमरेज। तो एनी ब्लीडिंग व्हिच नीड्स इमीडिएट इवैल्यूएशन बाय क्लिनिशियन कम्स अंडर सीवियर ब्लीडिंग या सीवियर हेमरेज। ये भी एक सीवियर डेंगू का क्राइटेरिया है एंड नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एडमिशन। और तीसरा क्राइटेरिया होता है सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, यानी अपने लिवर एंजाइम्स के मोर देन 1000 एलिवेटेड है, सीएनएस देखा पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में पड़ा हुआ है, या हार्ट में आपने देखे तो अरिथमियाज हो रहे हैं, या हार्ट की पंपिंग कम है, यानी शॉक डेवलप कर रहा है। तो इनमें से कुछ भी अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो मरीज को सीवियर डेंगू के क्राइटेरिया में आता है एंड दैट नीड्स इमीडिएट एडमिशन एंड ट्रीटमेंट बोथ। सो जस्ट टू समराइज, डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस एंड सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू में तीन चीजें आती हैं, फ्लूइड प्लाज्मा लीकेज जिसमें से शॉक हो सकता है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन या पेरिटोनियल फ्लूइड मैसिव असाइटिस। दूसरा होता है सीवियर हेमरेज, इतना ब्लीडिंग हो कि क्लिनिशियन की इमीडिएट इवैल्यूएशन की जरूरत पड़े, एंड सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट यानी लिवर एंजाइम्स 1000 से ज्यादा हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, अरिथमियाज आ रहे हैं, या हार्ट की फंक्शनिंग ठीक नहीं है। वार्निंग साइंस की बात करें तो वार्निंग साइंस में आते हैं पेन एब्डोमेन, टेंडरनेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, म्यूकोजल ब्लीड्स हो रहे हैं, लीवर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हुआ है, पेशेंट लिथार्जिक है या रेस्टलेस है, और लेबोरेटरी इवैल्यूएशन में हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है और प्लेटलेट्स फॉल हो रहे हैं, देन दीज आर वार्निंग साइंस। ठीक है, देन वी कम टू द नेशनल गाइडलाइंस जो कि क्लिनिकल सिवियरिटी को 5 कैटेगरी में डिवाइड करती हैं। वो बोलती हैं, ये 2015 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी थी, जो बोलते हैं 5 कैटेगरी में मोर और लेस चीज वही है। डेंगू फीवर में सिर्फ बुखार है, कोई प्लाज्मा लीकेज का एविडेंस नहीं है, कोई ल्यूकोपिनिया नहीं है और कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है, यानी बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है, हेडेक है, रेट्रोऑर्बिटल पेन है। देन उन्होंने बोला डेंगू हेमरेजिक फीवर ग्रेड 1। डेंगू हेमरेजिक फीवर ग्रेड 1 में बेसिकली डेंगू फीवर के सारे फीचर्स हैं, साथ में टॉर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव है और प्लाज्मा लीकेज का एविडेंस है। प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो सकते हैं, हेमाटोक्राइट 20% से ज्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है। टाइप विद डेंगू हेमरेजिक फीवर स्टेज 2 में, स्टेज 1 के तो सारे के सारे हैं ही, इसके अलावा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, चाहे चमड़ी में पिटिके दिखें या ऑर्गन ब्लीड्स हो, पेट दर्द होना शुरू होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। स्टेज 3 में, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं, यहाँ पे सर्कुलेटरी फेलियर आपको देखने के लिए मिलता है, यानी शॉक के फीचर्स होते हैं लेकिन बीपी इंटैक्ट रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और स्टेज 4 में प्रोफाउंड शॉक, यहाँ पे पल्स भी नहीं मिलती है, बीपी भी फॉल होता है, और सीवियर कैटेगरी में स्टेज 4 में आता है ये। तो मोर और लेस सेम है। तो ये जो स्टेज 3 स्टेज 4 आपका सीवियर डेंगू हो गया है, डेंगू DHF1 और DHF2 विद वार्निंग साइंस वाला हो गया है, और पहला वाला विदाउट वार्निंग साइंस वाला हो गया। तो चीजें सेम है, उसको अलग अलग तरीके से रखने का नजरिया है। सो वही सेम चीजें जो अभी हमने बात करी वही सारी चीजें इसमें आती हैं। अब नेचुरल कोर्स अगर अपन डेंगू का देखें तो क्या होता है, पहले 3 से 4 दिन में मरीज को तो 3 फेज में डिवाइडेड होता है डेंगू। पहला फेज होता है फेब्राइल फेज, दूसरा फेज होता है क्रिटिकल फेज, और तीसरा फेज होता है रिकवरी फेज। अगर अपन सबसे पहले देखें फेब्राइल फेज, ये पहले 2 से 5 दिन चलता है। इस दौरान मरीज के अंदर वायरल लोड बहुत हाई होता है। अगर आप यहाँ पे जांच करेंगे तो मरीज का NS1 एंटीजन पॉजिटिव आएगा, एंटीबॉडीज जनरली नेगेटिव आती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं बनी, एंटीबॉडीज बाद में बनना शुरू होती है ना। तो पहले 2 से 5 दिन में एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ एंटीजन टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वायरीमिया बहुत ज्यादा पीक पर होता है, और इस वायरीमिया की वजह से मरीज को हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर आता है, फीवर इवन रीचिंग मोर देन 40, है ना। बुखार आता है, मरीज को खाने पीने का मन नहीं करता है, प्लाज्मा लीकेज थोड़ा शुरू होता है, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, मरीज के अंदर पानी की कमी होने लगती है, हेमाटोक्रिट यहाँ से बढ़ना शुरू होता है और प्लेटलेट काउंट यहाँ से फॉल होना शुरू होता है। उसके बाद क्रिटिकल फेज शुरू होता है, जो कि 4 दिन से 7 दिन के बीच में है, मतलब जो पहला हफ्ता उसके लास्ट में और दूसरे हफ्ते के शुरू में ये फेज देखने को मिलती है। इसी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जब बुखार आपका मरीज का टूटने लगे, मरीज फेब्राइल होने लगे, बुखार ठीक होने लगे, या बुखार ठीक होकर दोबारा बुखार आता है, थोड़ा सा बुखार जो पहले से कम होता है,
इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। जैसे ही बुखार टूटता है, यानी 1 to 4 days आफ्टर डिफिवरेंस, क्या होता है, अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, प्लाज्मा लीकेज के फीचर्स यानी शॉक डेवलप होना शुरू होता है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होता है, ऑर्गन इम्पेयरमेंट सबसे ज्यादा इस टाइम पर होता है, हिमेटोक्रिट अपने पीक पर पहुंच जाता है, प्लेटलेट काउंट अपने नादर पे मतलब सबसे लीस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ वो फेज होती है जहाँ पे आपको आईजीएम एंटीबॉडीज और आईजीजी एंटीबॉडीज आपको पॉजिटिव मिलेंगी। NS1 एंटीजन यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये वो फेज होती है जहाँ पे अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड टेस्ट करना चाहिए, आपको क्लोजली हिमेटोक्रिट मॉनिटर करना चाहिए, प्लेटलेट काउंट देखना चाहिए, ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए, शॉक के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। बुखार टूट गया मतलब खतरे की घंटी बज गई है। ठीक है, यही वही टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्गन इंपेयरमेंट देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। तो बहुत क्लोजली मरीज को क्लिनिकली एज वेल एज लैब पैरामीटर्स को देखने की बहुत जरूरत होती है। एंड देन जैसे ही ये फेज खत्म होता है, उसके बाद जो फ्लूइड सारा लीक हुआ था थर्ड स्पेस में गया था, वो वापस रीअब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये वो फेज है जहाँ पे आपको फ्लूइड एकदम से देना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फ्लूइड देते रहेंगे तो ये सारा फ्लूइड अब लंग्स में जाने लगेगा और फ्लूइड ओवरलोड के फीचर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो फ्लूइड थेरेपी बहुत कॉशियस यूज होना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फीवर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, आपको फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होने लगता है, फ्लूइड ओवरलोड के फीचर्स आने लगते हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है, हिमेटोक्रिट फॉल होने लगता है और एंटीबॉडी टेस्ट आपके पॉजिटिव आते हैं। सो डेंगू को फिर से हम एक बार समराइज करेंगे। तो डेंगू वाला इन्फेक्शन दो तरह से आ सकता है। तो एसिम्प्टोमेटिक, मरीज को इन्फेक्शन भी हो गया पता भी नहीं चलेगा, या फिर सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक में तीन कैटेगरी होगी, माइल्ड डेंगू जिसको अपन बोलते हैं डेंगू फीवर विदाउट वार्निंग साइंस, मॉडरेट डेंगू यानी विद वार्निंग साइंस एंड रिस्क फैक्टर्स विदाउट वार्निंग साइंस, एंड देन सीवियर डेंगू। तो सीवियर डेंगू हमें पता ही है, इसमें तीन चीजें होती हैं, सिग्निफिकेंट प्लाज्मा लीकेज, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग एंड सीवियर ऑर्गन इम्पेयरमेंट। ठीक है, जहाँ पे माइल्ड में हमें पता है सिर्फ बुखार आता है, बुखार के अलावा कोई वार्निंग साइंस नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होता ब्लीडिंग का या कैपिलरी लीकेज का। एंड ये मॉडरेट डेंगू होता है, इसमें दो क्राइटेरिया हैं, एक तो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसमें रिकरेंट वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, वीकनेस, डिफ्यूजन, लिवर एनलार्जमेंट, हेमेटोक्रिट 20% से ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर आपके रिस्क फैक्टर्स वाले हैं जिसमें अगर वार्निंग साइंस नहीं भी है तो भी वो मॉडरेट डेंगू के अंदर आते हैं। और इसमें इन्फेंट्स, एल्डरलीज, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, प्रेगनेंसी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैविंग पेप्टिक अल्सर डिजीज, स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेजेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स, HIV वाले पेशेंट्स, ये सारे, हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल डिजीज भी इसी कैटेगरी में आता है। तो अब जांचें क्या कराएंगे आप इन मरीजों की? तो सबसे पहले जो बेसिक जांचें हैं जो सब जगह पे अवेलेबल होती हैं, कम्स इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आप देखना चाहेंगे उसका हेमाटोक्रिट क्या है, उसका प्लेटलेट काउंट क्या है। इनमें ल्यूकोपिनिया देखने को मिलता है, आप देखेंगे ल्यूकोसाइट काउंट फॉल हो जाता है, WBC काउंट 5000 से कम देखने को मिलते हैं, प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाते हैं, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। बिल्कुल कोविड का थोड़ा सा डिफरेंट है, कोविड में क्या होता है, लिम्फोसाइट काउंट्स आपके लो होते हैं, न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। डेंगू में थोड़ा उल्टा होता है, डेंगू में न्यूट्रोफिल काउंट लो होते हैं, लिम्फोसाइट काउंट ज्यादा होते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट आप कराएंगे तो एलिवेटेड आपको OTPT देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी ग्लूकोज लेवल्स लो चले जाते हैं तो ब्लड शुगर एस्टिमेशन करना जरूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम वैल्यूज लो आते हैं, है ना, तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली सीवियर डेंगू के अंदर जो क्रिटिकल फेज में देखने को मिलता है। यूरिया क्रेटिनिन आपके एलिवेटेड हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट है या डिहाइड्रेशन है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ इलनेस योर यूरिया क्रेटिनिन में बी deranged। कोएगुलेशन प्रोफाइल में PT, APTT आपका एलिवेटेड हो सकता है, पर्टिकुलरली APTT 50% से ज्यादा पेशेंट्स जिनको डेंगू हिमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है उसमें देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग PT आपका 10 to 20% में देखने को मिलता है। और एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे में आपको राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन या बायोलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, कभी कभी हार्ट एनलार्जमेंट भी देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा के फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सीरोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज देखेंगे तो फर्स्ट वीक में जैसे हमने बताया एंटीजेंस बढ़ते हैं और चौथे पांचवें दिन से एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू होता है। पहले IgM एंटीबॉडी लेवल्स पीक करते हैं, उसके बाद में IgG और IgA एंटीबॉडीज बढ़ते हैं। तो पहले हफ्ते में अगर आपको टेस्ट कराना है तो एंटीजन कराइए, लेट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वीक एंड बियॉन्ड दैट एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। Then we comes to the confirmatory test। तो अभी हमने बताया NS1 is the best test in the first week, ये acute infection बताता है। जब भी हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं इट शुड बी ऑलवेज ELISA बेस्ड, कार्ड बेस्ड
अवॉइड करना चाहिए। रैपिड डायग्नोस्टिक के लिए तो ठीक है, बट हमेशा कंफर्मेशन एलाइजा बेस्ड टेस्ट से करना चाहिए। अगर आपको ये जनरली 3 से 4 दिन के बाद में अपीयर होना शुरू होती है आईजीएम एंटीबॉडीज, और आईजीएम एंटीबॉडीज बताती है एक्यूट इन्फेक्शन और आईजीजी एंटीबॉडीज बताती है ओल्ड इन्फेक्शन। तो अगर आपने एंटीबॉडीज कराई हैं और आपका पहले एंटीबॉडीज में आईजीजी पॉजिटिव और आईजीएम नेगेटिव है, इसका मतलब मरीज को पास इन्फेक्शन पहले डेंगू हो चुका है। देखिए, मरीज को आईजीएम भी पॉजिटिव और आईजीजी भी पॉजिटिव है या सिर्फ आईजीएम पॉजिटिव है, तो दोनों ही सिचुएशन में इसका मतलब मरीज को एक्यूट डेंगू इन्फेक्शन है। NS1 एंटीजन पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम अर्ली स्टेजेस में करेंगे, नेगेटिव हो सकता है जब हम लेट स्टेजेस में करते हैं। और आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए यूजफुल टूल नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्टली है, थोड़ा समय लगता है, 7-8 घंटे लगते हैं, जबकि आपको एंटीबॉडी और एलाइजा टेस्ट आपको घंटे भर में रिपोर्ट मिल जाती है। ओके, सो अब हम चलते हैं स्टेप वाइज अप्रोच, कैसे अपन मैनेज करेंगे। तो स्टेप 1 इज हमेशा ओवरऑल असेसमेंट करते हैं, इट स्टार्ट्स विद हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस। स्टेप 2 में हम डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि डिजीज के कौन सा फेज है, वो फेब्राइल फेज में है कि क्रिटिकल फेज में है कि रिकवरी फेज में, सिवियरिटी क्या है कि विद वार्निंग साइंस, विदाउट वार्निंग साइंस है या सीवियर डेंगू है। एंड देन मैनेजमेंट में 2 पार्ट आते हैं, एक तो हमें एक्चुअल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्लस हमें डिजीज को नोटिफाई भी करना होता है, जो हम कई बार मिस करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग टू स्टेप 1, सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको ये पॉइंट्स पूछने बहुत जरूरी हैं कि मरीज को कितने दिनों से बुखार है, कितने दिनों से तकलीफ है, डायरिया है कि नहीं, उसका ओरल इंटेक कैसा है, यूरिन उसने कब किया। देखिए, अगर मरीज का प्लाज्मा वॉल्यूम अच्छा होगा, यूरिन में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, किडनी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो ये मान के चलिए कि वो दिन में कम से कम 5 से 6 बार यूरिन करेगा, एटलीस्ट 6 घंटे में एक बार उसको यूरिन करना चाहिए। बट अगर पेशेंट 6 आवर्स में एक बार यूरिन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका प्लाज्मा डिप्लीशन है, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम लो है, देयर आर एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज एंड यू शुड गिव फ्लूइड्स एडिक्वेटली, है ना। तो यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डेंगू मैनेजमेंट में, है ना। तो ये पूछना बहुत जरूरी है कि कितनी बार यूरिन कर रहा है, यूरिन का वॉल्यूम कितना है, थोड़ा थोड़ा सा तो नहीं कर रहा, अच्छा खुल के तो वॉल्यूम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो नहीं आ रहा, और आखिरी बार पेशाब उसने कब किया था। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मरीज को सेंसोरियम, ब्रेन का फंक्शन देखना जरूरी है कि वो लिथार्जी या रेस्टलेस तो नहीं है, कोई झटका तो नहीं आया है, चक्कर तो नहीं आ रहा है। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा हो रहा है तो अगेन इट सजेस्ट कि प्लाज्मा वॉल्यूम कम है, ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज लो। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें देखना चाहिए, हमेशा हम ABCD फॉर्मेट में मरीज को एग्जामिन करना चाहिए, जिसमें हम सॉरी जिसमें हम मरीज को देखते हैं उसका पल्स कैसा है, एयरवे कैसा है, CFT कैसा है, हार्ट रेट कितना है, रिदम कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, सैचुरेशन कैसा है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में हम देखते हैं कि मरीज को कभी कभी जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है तो साइलेंट टेकिपनी होता है, तेज तेज सांस चलती है लेकिन डिस्ट्रेस नहीं होता, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस नहीं होते, सिर्फ सांस तेज चल रही होती है। वो क्यों होती है? प्लाज्मा लीकेज की वजह से है, कभी कभी प्लूरल इफ्यूजन की वजह से होता है, कभी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। पेट को एग्जामिन करें, कोई एब्डोमिनल टेंडरनेस तो नहीं है, लिवर तो नहीं बढ़ा हुआ, असाइटिस तो नहीं है। रैशेस के लिए वैल्यूएशन करें, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पेटिकल स्पॉट्स तो नहीं है। और टॉर्निक्वेट टेस्ट हमेशा करके देखना चाहिए। टॉर्निक्वेट टेस्ट हम कैसे करते हैं? हमने मरीज के मिड आर्म में हम बीपी कफ बांधते हैं, ब्लड प्रेशर को, वो कफ को प्रेशर हम एलिवेट करते हैं, और जो उसका मीन ब्लड प्रेशर उससे 20 मिलीमीटर हम ज़्यादा उसको इन्फ्लेट करके हम उसको छोड़ते हैं एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स, एंड देन फिर हम उसको हटाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 स्क्वायर इंच में अगर 20 से ज़्यादा ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, देन इट इज कॉल्ड एज टॉर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव और हेस टेस्ट पॉजिटिव। नाउ इन्वेस्टिगेशंस में हमने जैसे बात की, सबसे पहले CBC भेजना चाहिए आपको, CBC के अलावा LFT करना चाहिए, RFT करना चाहिए, और डेंगू के लिए तो ऑब्वियसली आपको टेस्ट करना ही है, NS एंटीजन, NS1 एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, IgM एंटीबॉडीज आपको भेजना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हेमाटोक्रिट सीरियली आपको मॉनिटर करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन दोज पेशेंट जो वार्निंग साइंस के साथ में आए हैं या जो हाई रिस्क कैटेगरी है विद और विदाउट वार्निंग साइंस एंड सीवियर डेंगू के अंदर। सो बेसलाइन हेमाटोक्रिट हर एक का हमें देखना है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसी से हमारा मैनेजमेंट आगे बेस होता है। सिमिलरली प्लेटलेट काउंट हमें देखना होता है। हमेशा याद रखें, अगर पेशेंट के ल्यूकोसाइट काउंट फॉल हो रहे हैं, 5,000 से कम फॉल हो गए हैं, तो ये एक आपका इंडिकेटर है कि मरीज अब आपका क्रिटिकल फेज में जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो दैट
Leukopenia almost always precedes the onset of critical phase. डेंगू स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट कराने चाहिए, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप प्रोबेबल डेंगू के बेसिस पे भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्लिनिकल बेसिस पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट अगर फैसिलिटी है तो यस, यू शुड ऑलवेज कंफर्म इट। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द डिजीज सिवियरिटी एंड फेज, ये टेस्ट आपको हमेशा करा के देखने चाहिए, जैसे कि आरएफटी है, एलएफटी है, ब्लड शुगर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, कार्डियक एंजाइम जैसे ट्रॉप-टी, ट्रॉप-आई, ईसीजी, ये सब जरूर करा के देखने चाहिए। सो ग्रुप ए वाले पेशेंट्स, यानी जो वो पेशेंट जिनमें वार्निंग साइंस नहीं है, आप उनको सिर्फ पैरासीटामोल दीजिए, उनको ओरल फ्लूइड्स अच्छे से लेने के लिए बोलिए, बेड रेस्ट करने के लिए बोलिए, उनको वार्निंग साइंस समझा के बाद भेजिए, काउंसिल करके भेजिए, और उनको घर भेज सकते हैं। देन दूसरी कैटेगरी आती है विद वार्निंग साइंस वाले या रिस्क फैक्टर्स विद और विदाउट वार्निंग साइंस। इनको हॉस्पिटलाइज करना होता है और हमें मॉनिटर करना होता है। ओरल फ्लूइड्स उनको एनकरेज करना है, पैरासीटामोल देना है हमको उनको, एंड जस्ट वी कीप ऑन मॉनिटरिंग। और सीवियर डेंगू में आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप ए में सिर्फ होम बेस्ड केयर होती है, यानी वो पेशेंट जिनको कोई वार्निंग साइंस नहीं है, जो मुंह से खा पी पा रहे हैं, यूरिन कम से कम 6 घंटे में एक बार पास कर रहे हैं और हाई रिस्क कैटेगरी में है, तो इनको होम बेस्ड केयर। होम बेस्ड केयर में हम क्या बताते हैं? एडिक्वेट रेस्ट एंड फ्लूइड, पैरासीटामोल 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम, मैक्सिमम 3 ग्राम पर डे, उससे ज्यादा नहीं देना होता है। उनका हिमेटोक्रिट स्टेबल होता है। अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार चल रहा है तो उनको फिर डेली आके फीवर क्लिनिक में दिखाना होता है, जब तक कि वो क्रिटिकल फेज से आउट नहीं हो जाए। और घर में उनको क्या मॉनिटर करना है? टेम्परेचर कैसा आ रहा है, कितना उन्होंने फ्लूइड लिया है, कितना उनका यूरिन आउटपुट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉल्यूम कितना है, तो ये सारी चीजें हमें उनको समझा के भेजना होता है। और डेली उनसे फोन पे बात करके आपको पूछने हैं, उनका फीडबैक लेना है कि भाई आपको कोई वार्निंग साइंस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, कोई ब्लीडिंग स्पॉट्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी वार्निंग साइंस अगर उनको आ रहे हैं तो दे हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सब हमें उनको समझा के भेजना है। और पर्टिकुलरली तब ये भी हमें बताना है कि जब बुखार उतर जाए तो उसके अगले 3 दिन 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी इन डेली टच विद देयर डॉक्टर एंड लुकिंग एट कि भाई पेशाब तो कम नहीं हो रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, भूख तो कम नहीं हो गई है, उल्टियां तो नहीं आ रही हैं, पेट में दर्द तो शुरू नहीं हो गया है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो अगर इनमें से कुछ भी होता है, दे हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट बैक टू द हॉस्पिटल। नाउ कमिंग टू ग्रुप बी, यानी ग्रुप में बी में कौन से हुए? वो मरीज जिनको वार्निंग साइंस है या फिर जो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं और जिनमें वार्निंग साइंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो जिनको वार्निंग साइंस है तो वहां तो बिल्कुल क्लियर है, आपको बेसलाइन, आपको हेमाटोक्रिट देखना है, प्लेटलेट काउंट देखना है, और उनको इमीडिएटली आपको फ्लूइड देना है। आप यू स्टार्ट विद 5 to 7 ml पर kg फॉर 1 to 2 आवर्स, है ना। अब आप इसको ओरल भी दे सकते हैं अगर वो ओरली ले सकते हैं, बट अगर ओरली नहीं ले पा रहे हैं तो आईवी फ्लूइड शुरू कर सकते हैं। तो 5 to 7 ml पर केजी 1 से 2 घंटे देंगे, और उसके बाद उसको फ्लूइड रेट को कम करके 3 to 5 ml पर केजी देंगे अगले 2 से 4 घंटे के लिए, और फिर उसको जस्ट नॉर्मल मेंटेनेंस यानी 2 to 3 ml पर केजी या कम, डिपेंडिंग ऑन द रेस्पॉन्स। अगर पेशेंट एक्टिव है, सब कुछ है, पेट दर्द ठीक हो गया है, तो उसको आप ओरल भी अलाउ कर सकते हैं। जनरली 24 से 48 घंटे से ज्यादा आईवी फ्लूइड्स की जरूरत नहीं होती है, उससे कम में ही मरीज सेटल्ड आउट हो जाता है। आप लेकिन बार बार उसको क्लिनिकली इवेलुएट करते रहेंगे कि क्लिन पल्स बेटर हुई कि नहीं हुई है, हार्ट रेट पहले से इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम बेटर हुआ है कि नहीं हुआ है, मरीज के क्लिनिकली जो सिम्टम्स थे, जो वार्निंग साइंस थे, जैसे पेट में दर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, लिथार्जीनेस, ये इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई है। तो अगर ये सब इम्प्रूव हुई है तो जस्ट कीप ऑन क्लिनिकली मॉनिटरिंग। हिमेटोक्रिट बीच बीच में देखते रहें, दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार हिमेटोक्रिट आपको देखना चाहिए, और यूरिन आउटपुट उसको मॉनिटर करते रहें। और जो टारगेट यूरिन आउटपुट होता है दैट शुड बी मोर देन 0.5 ml पर केजी पर आवर। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, कोई 50 किलो का पेशेंट है तो उसको कम से कम 1 घंटे में 25 ml यूरिन आना चाहिए। अगर 100 किलो का है तो कम से कम 30 ml यूरिन उसका आना चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड 60 किलो अगर किसी का भी यूरिन आउटपुट 1 घंटे में 30 ml से ज्यादा है तो हम उसको मान के चलते हैं कि वो एडिक्वेट यूरिन आउटपुट है। ठीक है, जो मरीज जिनको वार्निंग साइंस नहीं है उनको हम एनकरेज करते हैं, भैया ओरली खाते पीते रहो। मेंटेनेंस फ्लूइड अगर वो नहीं अच्छे से खा पी पा रहे हैं तो आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस में लगा दें, और क्लिनिकल साइंस और हेमाटोक्रिट को मॉनिटर करते रहें। पर्टिकुलरली यूरिन आउटपुट क्लोजली मॉनिटर करें एंड सी दैट द यूरिन आउटपुट इज मोर देन 0.5 ml पर केजी पर आवर।
तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डेंगू का कोर्स डिफिकल्ट होने वाला है क्या, डेंगू सीवियर कैटेगरी में होने वाला है और हमारे को मैनेजमेंट में दिक्कत आने वाली है क्या? यस, देयर आर फ्यू स्टडीज व्हिच कैन बी सजेस्ट दैट अगर किसी का सीरम फेरेटिन लेवल मोर देन 500 माइक्रोग्राम पर लीटर हो, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेस देन 100 हो, या सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 3.5 हो, तो इन तीनों में से कुछ भी हो तो ये जनरली डिफिकल्ट डेंगू कोर्स वाले मरीज होते हैं, जिनमें डेंगू नॉर्मली जो एक नॉर्मल नेचुरल कोर्स होता है वैसा फॉलो नहीं करता, थोड़ा एबनॉर्मल कोर्स होता है, थोड़े पेशेंट्स ज्यादा सिक होते हैं, मे बी आईसीयू की जरूरत भी ऐसे मरीजों को होती है। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल ग्रुप जिनको हॉस्पिटलाइज करके इमरजेंसी मैनेजमेंट शुरू होता है, दैट इज द सीवियर डेंगू। उसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक वो पेशेंट्स जिनको शॉक है लेकिन ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटेड शॉक, और दूसरा ग्रुप जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी क्रैश कर गया, लो है, तो अडल्ट्स में लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और बच्चों में उनके एज अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 महीने से छोटा बच्चा है तो लेस देन 60, 1 महीने से 1 साल के बच्चे में लेस देन 70, 1 साल से 10 साल तक में जितनी उम्र होती है उसको हम दुगना कर लेते हैं, उम्र इन ईयर्स, तो जैसे एग्जांपल 2 साल है तो दुगना किया तो 2 into 2 is 4, और उसमें 70 ऐड कर देते हैं तो 74 से कम है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। 5 साल का बच्चा है तो 5 into 2 is 10 plus 70 80, तो 80 से कम है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो ये हाइपोटेंशन की डेफिनेशन होती है। अगर हाइपोटेंशन शॉक है तो इमीडिएटली आईवी फ्लूइड्स वगैरह स्टार्ट करने होते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को ये डिफरेंशिएट करना, पेशेंट जब आता है हाइपोटेंसिव शॉक में या शॉक में, तो ये देखना और डिफरेंशिएट करना मरीज को डेंगू शॉक है कि सेप्टिक शॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब सेप्टिक शॉक होता है उसमें आंसर होता है रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फ्लूइड पुश करते हैं हम। लेकिन डेंगू में फ्लूइड हमें बहुत कॉशियसली और केयरफुली देना पड़ता है, क्योंकि अब जब रैपिड पुश करते हैं तो जो भी फ्लूइड दे रहे हैं ना डेंगू में, तो जनरली क्या होता है, डेंगू में फ्लूइड लीक आउट कर जाता है, और यही लीक आउट सब जगह सारे ऑर्गन्स में करता है। जब ये फ्लूइड लंग्स में लीक आउट करता है तो पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो जाता है और फिर मरीज और ज्यादा सिक हो जाता है। ठीक है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिफरेंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट डेंगू शॉक सिंड्रोम वर्सेस सेप्टिक शॉक। बड़ा आसान है। सेप्टिक शॉक जनरली वार्म शॉक होता है, हाथ पैर गर्म होते हैं, पल्सेस बाउंडिंग आती हैं, पल्स प्रेशर वाइड होता है और कोई फोकस आपको सेप्सिस का मिलता है। डेंगू के अंदर पल्स प्रेशर नैरो होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस कम होता है, जनरली लेस देन 20 या 30 होता है। पल्सेस लो वॉल्यूम होता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, पल्सेस रेडी होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, है ना। तो डेंगू में नैरो पल्स प्रेशर मिलता है, सेप्टिक शॉक में वेसोडायलेटरी शॉक यानी बाउंडिंग पल्सेस मिलती हैं। मेंटल स्टेटस डेंगू में ज्यादा बेहतर होता है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट जनरली इरिटेबल या ऑल्टर्ड सेंसरी में देखने को मिलता है। और क्लिनिकल ब्लीडिंग डेंगू में ज्यादा कॉमन होती है, सेप्सिस में कम देखने को मिलती है। सो अब वो मरीज जो सीवियर डेंगू है आपके उसमें कॉम्पनसेटेड शॉक में है। कॉम्पनसेटेड शॉक का मतलब उसका सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 90 है, पर साइंस ऑफ रिड्यूस परफ्यूजन। रिड्यूस परफ्यूजन के क्या साइंस होते हैं, हाथ पैर ठंडे हैं, टेकिकार्डिया है, पल्स नैरो लो वॉल्यूम है, पल्स प्रेशर रिड्यूस्ड है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम प्रोलॉन्ग है ना। सो ये अगर फीचर्स है, यूरिन आउटपुट कम होता है, मरीज थोड़ा ड्राउजी हो सकता है, इरिटेबल रेस्टलेस हो सकता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटेड शॉक। इमीडिएटली ऐसे मरीज को आप आईवी लाइन लगाएंगे और नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट स्टार्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10 to 20 ml पर केजी पर आवर। 1 घंटे तक इसी फ्लूइड को हम देंगे 10 से 20 ml पर किलो के हिसाब से, 1 घंटे के ऊपर देंगे। ठीक है, 1 घंटे देने के बाद हम मरीज को देखेंगे, रीअसेस करेंगे कि इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो अब हम फ्लूइड को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो पहले हमने 10 to 20 ml पर केजी ओवर 1 आवर दिया था, अब हम 10 ml पर केजी ओवर 1 to 2 आवर्स देंगे। फिर उसके बाद में हम उसको और कम कर देंगे, 7 ml पर केजी पर आवर के रेट से हम देंगे अगले 2 घंटे के लिए। अगर इंप्रूव होता जा रहा है तो हम उसको कम करते जाएंगे, तो 7 ml पर केजी पर आवर से 5 ml पर केजी पर आवर, अब उसको 3 से 4 घंटे देंगे। फिर 3 ml पर केजी पर आवर पे उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि मरीज उठ के बैठ नहीं जाए, क्लियर सेंसोरियम नहीं हो, यूरिन अच्छा नहीं करने लगे, ओरल एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ जाएगा। ओरल जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, ओरली वो लेने लगता है, तो हम उसको तुरंत ओरल पे शिफ्ट कर देते हैं, आईवी फ्लूइड हम स्टॉप कर देते हैं। इन मरीजों में कभी कभी बीच बीच में आपको फ्लूइड बोलसिस की देने की जरूरत पड़ती है, तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। कभी भी आपके मरीज को साइंस जो इंप्रूव हो रहे थे वापस डिटेरियोरेशन की तरफ बढ़ते हैं तो फ्लूइड रेट आपको
पहले से ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो आपको देखना पड़ता है जनरली 48 घंटे के अंदर से ज़्यादा के आई फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती और आप 48 आवर्स के अंदर आई फ्लूइड स्टॉप कर सकते हो। बट अगर मरीज को आपने जो 10 to 20 ml पर kg ओवर 1 आवर जो आपने दिया था उससे आपका मरीज इंप्रूव नहीं करता है, तो यहाँ पर हिमेटोक्रिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको हिमेटोक्रिट देखना है, हिमेटोक्रिट बड़ा है, बेसलाइन से 20% से ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब अभी फ्लूइड डेफिसिट है, आपको और फ्लूइड देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक और बोलस देंगे अगेन 10 to 20 ml पर kg ओवर 1 आवर, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कोलॉइड भी यूज कर सकते हैं। कोलॉइड्स में क्या क्या आ सकते हैं, आपका एल्ब्यूमिन आता है कोलॉइड में, आपका ये हिमैक्सेल आता है, ये आप देते हैं अगेन 10 to 20 ml पर kg ओवर 1 आवर देते हैं, और फिर आप देखते हैं मरीज इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इंप्रूव कर रहा है तो आप वापस क्रिस्टलॉइड्स पे शिफ्ट कर दें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वैसे आप फ्लूइड रेट को एडजस्ट करते हैं। बट अगर मरीज इंप्रूव नहीं कर रहा है तो फिर से हिमेटोक्रिट चेक करिए, हिमेटोक्रिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वापस ये सर्कल चलता रहेगा जब तक कि हिमेटोक्रिट फॉल होना शुरू नहीं होने लग जाए। बट अगर हिमेटोक्रिट फॉल हो रहा है आपका और पेशेंट क्लिनिकली इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, मैसिव ब्लीड हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे सीवियर जो ब्लीडिंग हो रही है जो हमें दिख नहीं रही है, वहाँ पर आपको या दिख भी रही हो सकता है आपको ब्लीडिंग दिख रही हो कि लैट्रिन में खून आ रहा है या उल्टी में मरीज वॉमिटिंग में ब्लड कर रहा है, आपको पता है ब्लीड, या कई बार आपको नहीं पता चलता जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर इमीडिएटली मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। जब तक आप ब्लड अरेंज करते हैं तब तक कोलॉइड्स आप उसको 10 to 20 ml पर kg ओवर 1 आवर आपको देना होता है। When you continue till you can arrange blood and give blood products, okay? तो ये आपको ट्रांसफ्यूजन देना है जब तक कि क्लिनिकल इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता है। अगर मरीज हाइपोटेंसिव शॉक में आता है, यानी अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम है या एज अप्रोप्रिएट बीपी से कम है, तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली जब फ्लूइड रिसस्सिटेशन शुरू करना, कोशिश करें हिमेटोक्रिट अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सैंपल उसके लिए कई बार हाइपोटेंसिव शॉक में सैंपल नहीं लिया जाता, तो आप स्टार्ट कर दें कोलॉइड्स को या क्रिस्टलॉइड्स को, जो भी आपके पास में अवेलेबल है 20 ml पर kg से ओवर 1 आवर, एंड देन अगेन सेम साइकिल जो अभी हमने डिस्कस किया, बट टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज हो जाता है। हमने वहाँ पे जो सेकंड बोलस दिया था हमने उसको 30 मिनट्स, वो 1 घंटे में दिया था, यहाँ पे 30 to 60 मिनट्स में आपको रिपीट करना है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम है जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस करी। तो यहाँ पे हाइपोटेंसिव शॉक में कुल मिला के बात है कि फ्लूइड थोड़ा ज्यादा फास्ट देना पड़ता है, ओके। अगर आपका शॉक इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आपको कुछ चीजें हैं जो हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। चेकलिस्ट है हमेशा डेंगू में, चेकलिस्ट डेंगू मरीज के बेड के पास में चिपकी होनी चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं ये पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा हूँ। तो क्या चीजें होती हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं जो कि डेंगू शॉक सिंड्रोम में फायदा नहीं आ रहा है, उसके कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, परसिस्टेंट प्लाज्मा लीकेज, यानी प्लाज्मा लीकेज अभी भी चल रहा है और आपको और फ्लूइड्स देना है, हमें फ्लूइड देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम उतना फ्लूइड मेंटेन करके रहते हैं जितने में यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से ज्यादा रहे और मरीज का सेंसोरियम नॉर्मल रहे। पल्स आपको मिलनी चाहिए, तो अगर पल्स मिल रही है, मरीज यूरिन अच्छा कर रहा है और सेंसोरियम क्लियर है, इसका मतलब फ्लूइड डेफिसिट नहीं है, आपका फ्लूइड रेट ठीक है। तो परसिस्टेंट प्लाज्मा लीकेज के लिए देखना है कि परसिस्टेंट प्लाज्मा लीकेज हो रही होगी तो हो सकता है आपका मरीज का शॉक इंप्रूव ना करे। ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जो आपको दिखेगी नहीं, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है जो आप देख रहे हैं। मरीज को अगर शॉक इंप्रूव नहीं हो रहा, ऑलवेज चेक द पेशेंट्स ब्लड शुगर एंड ब्लड कैल्शियम लेवल्स। हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट को एनर्जी चाहिए ग्लूकोज की फॉर्म में, तो अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी, शॉक इंप्रूव नहीं करेगा। तो इसीलिए चेक फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। सेम इज ट्रू फॉर हाइपोकैल्सीमिया, हार्ट की मसल्स को कैल्शियम चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए, तो अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल्स लो होंगे तो हार्ट की मसल्स ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ब्लड कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल्स चेक करनी चाहिए। फिर भी इंप्रूव नहीं कर रहा है तो डू एन इको एंड लुक फॉर मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, की मायोकार्डाइटिस तो नहीं है, वायरस ने सीधे हार्ट को अफेक्ट कर दिया और इसलिए हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मरीज को वेजो एक्टिव एजेंट जैसे कि मिलरिनोन, डोबिटामिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, इन सब एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। परसिस्टेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, परसिस्टेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वो भी हार्ट को ढंग से फंक्शन नहीं करने देता है, और यहाँ पे आपको फिर सोडा बाइका वगैरह देना पड़ता है या कभी कभी डायलिसिस करना पड़ता है, और उसकी वजह से शॉक का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा होता है। एसीएस यानी एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इतना ज्यादा एसाइटिस हो गया है, एकदम पेट टेंस हो गया कि जो भी वीनस रिटर्न है उसको जाने नहीं दे रहा, ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है, प्लस
डायफ्राम को ऊपर पुश किया हुआ है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी मरीज को परसिस्टेंट शॉक हो सकता है। इंटर एब्डोमिनल हाइपरटेंशन भी वही सेम ही चीज है। फ्लूइड कौन सा देना है, क्रिस्टलॉइड्स की कॉलॉइड्स, हमेशा क्रिस्टलॉइड्स प्रेफर करने चाहिए, चाहे नॉर्मल सलाइन दो चाहे रिंगर लैक्टेट दो। अगर देने 1 या 2 क्रिस्टलॉइड्स देने के बाद में मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तभी हमें कॉलॉइड्स प्रेफर करने चाहिए। शुरू में ही कॉलॉइड्स को यूज नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। ओके, सो कोलॉइड्स महंगे भी आते हैं और बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने क्लियरली बताया है कि कोई एडवांटेज नहीं है कोलॉइड्स का क्रिस्टलॉइड्स के ऊपर यूज करने में, चाहे वो हॉस्पिटल में स्टे के लिए अगर अपन देखें, चाहे मोर्टेलिटी आउटकम्स के बारे में देखें, है ना। पर कोलॉइड्स एक प्रिफर्ड चॉइस हो सकती हैं, पर्टिकुलरली कब, जब ब्लड पेशेंट हाइपोटेंसिव हो, आपको इमीडिएटली ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर करना है, या फिर वहां पे जहाँ पे ब्लड पल्स प्रेशर जो है बहुत ही ज्यादा नैरो है, लेस देन 10 मिलीमीटर पहुंच गया पल्स प्रेशर, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच में डिफरेंस सिर्फ 10 से कम रह गया, तो वहां पर भी कोलॉइड्स कई बार लोग प्रेफरेबली यूज करते हैं टू ओवर क्रिस्टलॉइड्स। ओके, नाउ डेंगू के अंदर फ्लूइड्स हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जब अपन सलाइन यूज करते हैं तो इट कैन लीड टू हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, है ना। सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड जो कंटेंट है उसकी वजह से एसिडोसिस होता है, तो फ्लूइड्स का इस्तेमाल सोच समझ के करें, इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए। और कई बार ये हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस को हम लैक्टिक एसिडोसिस से कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी अपन मॉनिटर कर रहे हैं एसिडोसिस के लिए तो हमें दोनों चीज़ देखनी चाहिए, लैक्टेट लेवल्स भी देखने चाहिए और क्लोराइड लेवल्स भी मॉनिटर करना चाहिए। जब भी सीरम क्लोराइड लेवल्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो फिर सलाइन की जगह पे हमें रिंगर लैक्टेट का यूज करना चाहिए। ओके, नाउ WHO गाइडलाइंस में क्लियरली क्रिस्टलॉइड्स प्रेफर्ड चॉइस होती हैं और कोलॉइड्स हम तभी कंसिडर करते हैं जब पल्स प्रेशर लेस देन 10 हो और पेशेंट इंट्रैक्टेबल शॉक में हो। आईवी फ्लूइड्स कब स्टॉप करने हैं, जब मरीज का बीपी स्टेबल हो जाए, पेरिफेरल पल्सेस अच्छी आए, हाथ पैर गर्म हो जाए, CFT नॉर्मल हो, लेस देन 2 सेकंड्स हो, पेशेंट का सेंसोरियम क्लियर हो, यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो, हेमाटोक्रिट फॉल होने लग जाए इन द प्रेजेंस ऑफ गुड वॉल्यूम, एब्डोमिनल पेन डिसअपियर हो जाए, प्लाज्मा लीकेज के फीचर्स कम हो जाएं, तो ये सारे अगर सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब आप आईवी फ्लूइड्स निश्चिंत होकर आप बंद कर सकते हैं एंड पेशेंट शुड बी टेकन ओरली। ओके, हेमाटोक्रिट में हमेशा ध्यान रखें, क्यों इम्पोर्टेंट है, 3 डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए पेशेंट का, हमेशा हेमाटोक्रिट को इन 3 चीज़ों के साथ में देखना है। उसका हीमोडायनेमिक स्टेट कैसा है, यानी पेशेंट शॉक में तो नहीं है, पल्स वॉल्यूम कैसा है, फ्लूइड को कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है और एसिड बैलेंस कैसा है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह तो नहीं है। अगर पेशेंट का हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है और वाइटल्स अनस्टेबल है, जैसे कि पल्सेस टैकीकार्डिया है, पल्स वॉल्यूम लो है, बीपी लो है, इसका मतलब एक्टिव प्लाज्मा लीकेज है, यहाँ पे फ्लूइड आपको फास्ट देना है। आपका हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है और वाइटल्स स्टेबल है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें। दूसरी कैटेगरी होती है जहाँ पे हेमाटोक्रिट फॉल हो रहा है और वाइटल्स अनस्टेबल है, जिसका मतलब मरीज को ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अगर हेमाटोक्रिट फॉल हो रहा है लेकिन वाइटल्स स्टेबल है, इसका मतलब आपका फ्लूइड थेरेपी काम कर रही है, हीमोडाइल्यूशन है, यहाँ पे फ्लूइड आपको कम करना है, फटाफट कम करना है। और अगर आपको फ्लूइड ओवरलोड के फीचर्स दिख रहे हैं तो फटाफट तेजी से फ्लूइड कम करें या बंद करें। ओके, ब्लीडिंग का रिस्क सबसे ज्यादा किस में होता है, ब्लीडिंग का रिस्क उनमें सबसे ज्यादा होता है जिनको रिफ्रैक्टरी शॉक हो, हाइपोटेंसिव शॉक हो या प्रोलॉन्ग शॉक हो, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो, सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, किसी ने NSAIDs ले लिया जैसे आइब्यूप्रोफेन ले लिया, नेप्रोक्सेन ले लिया बुखार तोड़ने के लिए, हाथ पैरों में दर्द के लिए, तो वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अंडरलाइन पेप्टिक अल्सर डिजीज हो या इंट्रामस्कुलर किसी ने इंजेक्शन लगवाया हो तो वहां पे भी ब्लीडिंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हम ब्लीडिंग कैसे मैनेज करते हैं, तो आपको देखना होता है प्लेटलेट काउंट क्या है, कोएगुलेशन प्रोफाइल क्या है। तो आपको अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो आप प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स देते हैं, कई बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स भी देने पड़ते हैं आपको। अगर कई बार प्लाज्मा प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आपको चढ़ाना पड़ता है। सिंपल ब्लीड्स के लिए जैसे एपिस्टेक्सिस है, गम ब्लीड्स है, उनके लिए कोई ब्लड प्रोडक्ट्स देने की जरूरत नहीं। ब्लीडिंग के लिए आपको तभी देना है जब वो ब्लीडिंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो, यानी GI ब्लीड हो रहा है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तभी आपको देना है। या फिर प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 हो गए, वहां पर भी आप प्रोफाइलैक्टिकली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। ओके, तो इंडिकेशंस क्या हैं ब्लीडिंग के लिए मैनेज करने के लिए, अगर GI ब्लीडिंग हो रहा है, सिवियर है और डिफिकल्ट टू लोकलाइज है, वहां पे आपको
प्लाज्मा प्रोडक्ट्स भी देना है प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना है। सिवियर एपिस्टेक्सिस एंड हेमोप्टिसिस जनरली जरूरत नहीं पड़ती, बट कभी कभी आपको देना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइफ सेविंग होता है। अगर आपके पास होल ब्लड या पैक्ड सेल्स नहीं है तो आप प्लाज्मा एक्सपेंडर दे सकते हैं, कोलॉइड्स दे सकते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ मैसिव ब्लीडिंग में या प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 है तभी देना होता है। कोगुलोपैथी के लिए हमेशा मॉनिटर करें, और अगर है और पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको दें। नाउ क्या चीज नहीं करनी होती है डेंगू फीवर में, ये भी हमें पता होना चाहिए। एनएसएआईडीज, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए, ये हमें डेंगू में नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट कम होता है और सारे एनएसएआईडीज जो होते हैं प्लेटलेट की फंक्शन की भी एबनॉर्मेलिटी करते हैं, तो इट शुड बी अवॉइडेड। हमेशा अगर कोई एविडेंस नहीं है प्लाज्मा लीकेज का तो आईवी फ्लूइड्स नहीं देने चाहिए। आईवी फ्लूइड्स तभी स्टार्ट करने चाहिए जब कैपिलरी लीक के या प्लाज्मा लीक का एविडेंस हो। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी देना चाहिए जब इंडिकेटेड हो, यानी कि अगर प्लेटलेट काउंट जस्ट 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, ब्लीडिंग नहीं है, तो प्लीज डोंट गिव प्लेटलेट्स। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तभी देने हैं प्लेटलेट जब क्लिनिकल ब्लीड्स हो, बेड ब्लीड्स हो, तभी आपको देना है, अदरवाइज प्लेटलेट्स नहीं देने हैं। स्टेरॉइड्स अवॉइड करें, एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। फ्लूइड्स बहुत फास्ट नहीं देंगे, यू हैव टू गिव फ्लूइड्स बट स्लोली एंड मॉनिटर हेमाटोक्रिट, है ना। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट बैक्टीरियल शॉक और सेप्टिक शॉक, दिस इज डिफरेंट देन सेप्टिक शॉक, सो बी कॉशियस। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है? पेशेंट शुड बी एफेब्राइल फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स बिना एंटीबायोटिक्स के। तो आप पैरासीटामोल एक भी पूरे दिन में एक भी पैरासीटामोल लीजिए और मरीज को टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं गया है, इसका मतलब पेशेंट एफेब्राइल है। उसकी सांस की गति नॉर्मल होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्लेटलेट काउंट 50,000 से ज़्यादा होने चाहिए, एपेटाइट आ गया होना चाहिए। आप बिलीव करें, अगर किसी का एपेटाइट आ गया तो आप मान के चलें कि उसकी डिजीज ठीक होने लगे, और यूरिन आउटपुट 1 ml पर केजी पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया मरीज फुलफिल करता है तो यू कैन सेफली डिस्चार्ज द पेशेंट। So that is all from my side. Thank you very much.